SBA Publications. Hello my dear students, how are you all? I hope you all are happy and healthy in your home. This is your mentor Soni Sati, and today with me we are starting our chapter number 7, and the name of our chapter is Animals Are Useful for Us. In the previous class we learned about that how plants are useful to us. Plants किन किन तरीके से हमारी यूज में आ सकते हैं, and we saw so many uses of plants. Okay. Now we are going to learn about the use of animals. So animals भी हमारी बहुत तरह से help करते हैं. So let's understand the same with me in this chapter. By the end of this lesson, you will be able to name the domestic animal. आप सभी को domestic animals के बारे में और उनकी name के बारे में पता होगा. Now explain the importance of domestic animals. और आपको importance of domestic animals भी अच्छे से आ जाएगा, समझ आ जाएगा. Now we have get active. So visit a nearby farm. अपने आसपास किसी फार्म में आपको विजिट करना है. Then name the animal you saw there. उसके बाद आपको नेम बताना है उस एनिमल का जो आपने देखा. Name the product we get from these animals. और जो भी आपने वहाँ पे एनिमल्स देखे उनसे आप क्या क्या प्रोडक्ट लेते हैं आपको वो भी लिखना है. There are different kinds of animals around us. Animals that we tame to keep them at our homes or on farms are called domestic animals. So, हमारे आसपास काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, हम बहुत सारे तरह के एनिमल्स देखते हैं, बट हर तरह के एनिमल्स को हम अपने घर में नहीं रखते हैं. जिन एनिमल्स को हम अपने घर में रख सकते हैं, अपने फार्म में रख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. वो हमें हार्म नहीं करते हैं. लाइक काउ, हॉर्स, गोट, शीप, hen एंड डक. जैसे कि गाय, घोड़े, गोट यानी कि बकरी, शीप, भेड़े एंड मुर्गी एंड डक यानी बतख आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. ये सब डोमेस्टिक एनिमल के ही एग्जाम्पल्स हैं. Here we have some uses of domestic animal. Before that, we are going to know more that domestic animals are also known as farm animals. हम domestic animals को farm animals भी कहते हैं. So, uses of domestic animals. Domestic animals are useful to us in many ways. So, some animals give us milk. कुछ animals हमें milk देते हैं, दूध देते हैं. Animals like cows, buffaloes and goats that give us milk are called as milch animal. इन सभी को हम milch animal कहते हैं because they give us milk. They provide us milk which is very healthy for us. So that is like from cow, buffalo and goat. Now we drink milk to grow strong and healthy. हम milk को पीते हैं ताकि हम बहुत ही जल्दी grow करें, अच्छे से grow करें and healthy हो जाएं. Milk is also used to make cheese, butter, ghee, ice cream and curd. So मिल्क से काफ़ी सारे मिल्क प्रोडक्ट भी बनते हैं जैसे कि चीज़, बटर, घी, आइसक्रीम एंड कर्ड. नाउ वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज hen, ducks एंड geese. So हमें अंडे दैट इज एग्स भी मिलते हैं फ्रॉम बर्ड्स लाइक hen, लाइक duck एंड लाइक geese. So here is the picture of hen and duck. Okay? So let's do it. Ask your mother for some milk and try to make curd yourself. आप अपनी मम्मी से थोड़ा सा मिल्क मांगिए और उससे आप कर्ड बनाने की कोशिश करिए अपने आप. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक द कर्ड. कितना टाइम लगता है दही बनने में. डू यू हैव टू कुक इट. क्या आपको उसे पकाने की ज़रूरत पड़ी. सो हेयर यू हैव टू आंसर दिस. नाउ वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स सच एज चिकन, गोट एंड शीप. अब हमें मीट दैट इज मांस. ओके, द मांस. ओके, हमें कहाँ से मिलता है. From such animals like chicken, goat and sheep. ऐसे animals जैसे कि sheep, goat, okay, इनके flesh को हम खाते हैं. Okay, so like goat and sheep. Some animals give us silk, wool and fur. कुछ ऐसे animals भी होते हैं जो हमें silk provide करते हैं, wool provide करते हैं, fur provide करते हैं. Again, they are used to make clothes.
So here we can see silkworm gives us silk. जो silkworm होता है ऐसा इंसेक्ट होता है, ऐसा कीड़ा होता है जो कि हमें सिल्क प्रोवाइड करता है. शीप गिव्स अस वुल. जो शीप होती है, भेड़ होती है, वो हमें वुल प्रोवाइड करती हैं जिनसे हम वार्म क्लोथ्स बनाते हैं और जिनसे हम ठंड में बच पाते हैं. Goat, camels and snakes skin is used to make leather. Goat and camel और snakes ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन से हम लेदर बनाते हैं. And again leather are used to make so many kind of fashionable things like purse, like jacket, okay, like belt and shoes. So now here is some pictures of the item which are made by leather. Now honey bees gives us honey. जो honey bees होती है वो हमें honey provide करती है. Here is the picture of honey bee. See, they provide us honey which we eat, which we take from market and then we eat. Now we have beast of burden. What is beast of burden? Horses, camels, donkeys, elephants and bullocks help us to carry heavy loads. Horses, camels and donkeys, elephants ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे हम वेट रखकर अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. ये हमें हेल्प करते हैं हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए. वी कॉल देम बीस्ट ऑफ बर्डन. इसीलिए हम उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहते हैं. कैमल्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस आर आल्सो यूज्ड फॉर राइडिंग. और जिनमें से कैमल्स, एलिफेंट्स और हॉर्सेस को भी राइडिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं. राइडिंग मीन्स जिसमें हम खुद बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ओके, देन वी हैव अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स. सम एनिमल्स प्लफ फार्मर्स फील्ड. सो कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि एक किसान के खेत को जोतने में हेल्प करते हैं, प्लफ करने में हेल्प करते हैं. फार्मर्स यूज ऑक्सन टू प्लफ देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग. जो फार्मर्स होते हैं वो बैलों की हेल्प लेते हैं टू प्लफ देयर फार्म्स. ओके, उनके खेतों को, उनके एरियाज में जिन पे भी उन्हें प्लांट उगाने हैं, अपनी खेती बाड़ी करनी है, उसको वो यूज़ करते हैं बाय प्लफिंग. ओके, प्लफिंग करेंगे. और प्लफिंग किससे करते हैं? ऑक्सन से. ओके, नाउ डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल. डॉग्स गार्ड आवर होम्स एंड कीप स्ट्रेंजर एंड थीव्स अवे. डॉग एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा एनिमल होता है जो कि हेल्प करता है एक घर को, एक होम को, हमारे होम को गार्ड करने में. ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रेंजर्स को घर में एंटर करने से मना करता है विद द हेल्प ऑफ बार्किंग. और जिससे थीव्स अवे होते हैं. ओके, जिससे चोर वगैरह घर में नहीं आते हैं. सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, मंकीज एक्सेट्रा आर यूज्ड इन सर्कस एंड जू टू एंटरटेन पीपल. सो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि थोड़े नेचर में फ़नी होते हैं जिन्हें हम सर्कस में यूज़ करते हैं टू एंटरटेन द पीपल. लाइक एलिफेंट, लाइक लायन एंड लाइक monkey. Now we have some keywords of this chapter. Domestic animals. Animals that are kept at home or at farms are known as domestic animal, we know. Now fur, the soft thick hair that covers the bodies of some animal. What is fur? जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो थिक लेयर होती है, ओके, थिक हेयर की लेयर होती है और वो सॉफ्ट होती है जो उन्हें कवर अप करती है, उनको हम लेकर फर बनाते हैं. ओके, उसे हम फर कहते हैं. नाउ वी हैव टू सम अप. डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. डोमेस्टिक एनिमल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं तरह तरह के कामों के लिए. सम एनिमल्स गिव अस सिल्क, वुल एंड फर. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सिल्क, वुल और फर प्रोवाइड करते हैं. कैमल्स, एलिफेंट एंड हॉर्सेस आर ऑल्सो यूज फॉर राइडिंग. कैमल्स, एलिफेंट्स और हॉर्सेस ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं. फार्मर्स यूज ऑक्सन टू प्लफ देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग. जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो खेत जोतने के लिए बैलों की, लाइक ऑक्सन्स की हेल्प लेते हैं. एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, एग्स एंड मीट. और एनिमल्स हमें मिल्क, एग्स और मीट भी प्रोवाइड करते हैं. By here we have completed our chapter. Now we have our exercise part which you people will do
with the help of the explanation part of this chapter. So, student, by here we have completed our chapter. I hope each and every concept is totally clear to you. If you found any query in any concept, in any question, you people can also watch this video once again to make it clear. Okay, so now I will meet you in the next video with another chapter. Meanwhile, keep on learning, take care and stay healthy. Bye bye.